a physical health issue for which we learned very soon how to protect ourselves. Of course, we lost a lot of family and friends. But we know a lot of people who went through anxiety, who went through panic, who are still going through it, even though the virus did not enter their house. उनके घर में कोविड नहीं आया था, उनके घर में कोई जॉब लॉस नहीं हुआ है, और वो खुद आज इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो ये एंग्जाइटी और पैनिक क्यों आ रहा है. एंड द एंग्जाइटी अटैक एंड पैनिक अटैक में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हुई है, दैट इज स्टूडेंट कम्युनिटी, चिल्ड्रन. And which is a sign, because it's important to catch the signs so that we know what to prepare for the future. Because immediately when you think why बच्चों के अंदर anxiety attack हुआ या panic attack हुआ, तो हम कहते नहीं वो बंद बैठे थे, घर में बैठे थे, ये हो रहा था. Situation. Important is the ability to cope with a situation which is not my way. जीवन में हर चीज़ मेरे अनुसार नहीं हो सकती है. Can life always be my way? Can life always be my way? No. So we will prepare a child. The parents will work hard on the child. They will groom the child to become so and so. The child will excel and reach so and so. Everything would be going perfect on the highway, and suddenly comes a scene where everything changes in his life or her life. And then that child, if he does not have the coping skill to balance himself and take care of himself in that situation, then everything that that child had learned comes to a full stop. हम सब अपने जीवन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और ऐसा होगा. हर पेरेंट भी अपने बच्चे के लिए लिखता है और हर बच्चा भी अपने लिए लिखता है कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी. We are not living in the times of certainty. We're living in a time of uncertainty. Which means जो आज हम प्लान करेंगे, ज़रूरी नहीं है दुनिया वैसी होगी और ज़रूरी नहीं है जीवन वैसा होगा. हो भी सकता है, हो सकता है उससे बहुत अच्छा होगा जो हमने प्लान किया था, और हो सकता है जो हमने प्लान किया था उससे अलग होगा. गलत नहीं होगा, अलग होगा. लेकिन जब किसी बच्चे के जीवन में कुछ अलग हो जाए, जो उसने चाहा नहीं था, कुछ और हो जाए, बुरा नहीं हुआ है, सिर्फ अलग हुआ है, लेकिन उस अलग को भी सामना करने की शक्ति, the power to face that change that has happened, if that power is not there, then the child doesn't have the coping strength, then the child is not able to face what has come to him or her in life. And सब कुछ अच्छा है लेकिन अलग है, मैं जो बनना चाहता था वो मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो मेरा अब जीने का कोई फायदा नहीं है. रिश्तों में मुझे रिजेक्शन मिली, I don't want to live anymore. कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, किसी ने ना कह दिया तो इतनी लंबी ईमेल बना के भेज देते हैं, I don't want to live anymore. Why? Because somebody said no to me. This morning, I have met a mother. Her face is still in front of my eyes because she couldn't stop crying. Because 20 days back, her 16-year-old son, जिसको पेरेंट्स ने थोड़ा प्यार से डांटा था क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन वो डांट सुनने के बाद वो बच्चा टेरेस पर चला गया और आज वो बच्चा उनके साथ नहीं है. और आपको पता है वो पेरेंट क्या कह रहे हैं? वो पेरेंट कहते हैं हमने उसको कुछ बोला ही क्यों, हमें बोलना नहीं चाहिए था. I shouldn't be sharing something which is very private, but I want to share because we need to think about this. क्योंकि जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो हम फिर उनको कुछ कहने से भी डर जाते हैं कि हम तो उनको कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो अपने आप को ही कुछ कर लेते हैं. बट इसका मतलब the child of today is not having the ability to listen to a no. The child of today is not being able to adapt to something which is not their way. And हमने अगर सब कुछ बेस्ट क्रिएट कर दिया
लेकिन उनके अंदर ये शक्ति नहीं हुई जीवन में आने वाली सिचुएशंस को फेस करने के लिए, then they can still be an achiever. And we know a lot of achievers today. They are achievers, they are performers, they have excelled in everything that they wanted to do, they have reached where they wanted to be, they could be on magazine covers, but internally they say, अंदर कुछ खाली खाली है. सब कुछ है हमारे पास कहते हैं, लेकिन खुशी नहीं है. तो फिर वो जो सब कुछ जो पाया उसका फायदा क्या हुआ अगर उसके साथ खुश रहना नहीं सीखा था? And that is why the mental health issues are on the rise. And if today, as teachers and principals and educationists, we do not address, mark the date today, and then check next year on the same date, the mental health issues would have gone like this. They are not going to go like this. They are going to go like this. पैसा ना हो, हम रह सकते हैं. शरीर ठीक ना चल रहा हो, तो भी मैनेज हो जाता है. लेकिन मन ही ना साथ दे, तो उसके बाद आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब कुछ हो, लेकिन मन में सुकून ना हो, तो क्या करेंगे? So now it's important today to decide who is going to take care of this part of life. So we're not talking about after there is a mental health issue. Of course, we treat and everything gets okay. It's not such a big thing. But important is what to do so that we can prevent a mental health issue. भारत वो देश नहीं है जहाँ ये फिगर्स इतने हाई होने चाहिए. भारत वो देश है जहाँ हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं, हमारे साथ हमेशा कोई है, हम अकेले नहीं होते हैं. भारत वो देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, सेवा भाव है, कम्युनिटी लिविंग है. भारत वो देश है नहीं जहाँ डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो सकता है. और भारत आज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस इन द वर्ल्ड है. तो क्यों? क्योंकि भारत देश की संस्कृति को ही शायद हम नहीं यूज़ कर रहे हैं. और जब संस्कृति को यूज़ नहीं करेंगे तो संस्कार बदल जाएंगे, और जब संस्कार बदल जाएंगे तो शक्ति घट जाएगी. So the need of the hour is to start focusing on sanskar, and which means on emotional health. Our role is not to take care of mental health. Mental health ka role is to be taken care of by a psychologist, a counselor, a psychiatrist. But our role is to take care of emotional health. And if we take care of emotional health, we are going to bring down the statistics of mental health. And if we do it, then we have the power to be able to help the entire world to be able to do it. इसीलिए दुनिया कहती है भारत विश्व गुरु बनेगा. भारत विश्व गुरु बनेगा अर्थात भारत दुनिया को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा. कौन से अंधकार से भारत दुनिया को रोशनी में लेकर आएगा? लेकिन भारत तब वो करेगा जब भारतवासी खुद वो करेंगे. तब a country is only about the people of the country. अगर हम अपनी उस संस्कृति को, अपने उस संस्कारों को फिर से, तो स्कूल में क्या हम सब कुछ पढ़ाते हुए, जैसे अनुराग जी ने कहा integrated, so one subject integrated with another, beautiful. But can we integrate how to create a strong mind, a powerful mind, emotional health in every subject throughout the day? Because at the end of the day, you know, when I walk out of school, I've learned so many subjects, and apart from subjects, I've done elocution, we've done debating, we've done drama, we've done knitting, we've done art and craft, we've done sports, we've done everything in school. But there's only one thing that we don't talk about in school: how to take care of the mind. And tomorrow when I come out of school and my college, I might use one or two subjects, the rest I don't use. And somebody else will use one or two and the rest they will not use. But the one subject which everyone has to be using is not talked about and is not taught. Because हम सोचते थे कि वो वाला रोल घर में होना चाहिए. बात राइट भी थी कि संस्कारों की बात, बच्चे को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने की बात, वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है. लेकिन आपको दिख रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ठीक से नहीं हो रही है इस समय. पेरेंट्स तो आजकल एक ही चीज़ कहते हैं, भाई हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता.
ये कहकर काम खत्म। उनको सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज़ बोल दो कि जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी और फ़ोन ऑफ होने चाहिए। एटलीस्ट सिंपल ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। दैट डोंट प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग एट होम, नो फोन, नो टीवी वाइल ईटिंग। तो पहले तो खुद के लिए सोचते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर कहते हैं चलो हमने कर भी लिया, हम कर लेंगे, लेकिन उनको हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि वो हमारा नहीं मानते हैं। तो दे हैव मेड दिस एन अफर्मेशन। बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते इज लाइक अ सबकॉन्शियस माइंड का सॉन्ग जो पीछे, जैसे कई मूवीज में गाना चल रहा होता है ना पीछे, या आजकल जीवन में गाना चल रहा है पीछे। और जितना हम ये बात बोलते रहेंगे नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते, उतना उन्होंने नहीं मानना है। बट द क्वेश्चन ये है कि क्यों ये बच्चे कहना नहीं मानते, वैसे क्यों ऐसा लग रहा है? लेट्स गो 20-30 ईयर्स बैक। और हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम तो अपने मम्मी पापा का सब कहना मानते थे, राइट, मेजॉरिटी है ना। तो उन्होंने कहा बैठो तो बैठो, उन्होंने कहा खड़ो तो खड़ो, उन्होंने कहा ये खा लो तो ये खा लो, उन्होंने कहा ये पहन लो तो ये पहन लो। हम क्यों उनका कहना इतना मानते थे और ये क्यों इतना कम थोड़ा मान रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? कनेक्टिविटी। आज से जितनी कनेक्टिविटी तो कभी थी ही नहीं। आज से जितनी कनेक्टिविटी कभी थी दुनिया के अंदर। There's only one reason. There's only one reason. When it comes to emotional health, when it comes to strengthening a child emotionally, there is only one way, and there is no other way. There is only one way. The adults around them will have to strengthen themselves. अगर एज एजुकेशनिस्ट एंड एज पेरेंट्स, क्योंकि हम दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, इफ वी स्टार्ट रेजिंग आवर एनर्जी लेवल हियर, आवर वाइब्रेशंस, देन आवर वाइब्रेशंस आर गोइंग टू एनर्जाइज देम। जब हम कहते हैं बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस है, तो इमीडिएटली द पेरेंट विल से ओ आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, यू नो आजकल प्रेशर इतना है। यू नो आजकल का एजुकेशन सिस्टम कितना ईजी हो गया है। आपको याद है हम सब ने बोर्ड के एग्जाम कैसे दिए थे? कैसे दिए थे? तब देखो और आज का देखो। आई डिड ICSE, so 3 years syllabus. 3 years syllabus, Monday to Friday, 2 exams in a day. You leave at 8 o'clock in the morning, you come back at 4 o'clock in the evening. Monday you start, you give 2 exams of 3 hours every day of 3 years syllabus. Friday exam over. Finished. मतलब 5 दिन में आप 3 साल का सिलेबस 2 पेपर रोज दे रहे हो, और तब भी हमें स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था। वो फिजिक्स में ही था सिर्फ। डिड वी नो द वर्ड स्ट्रेस 30 years बैक? नो। हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते थे, थोड़ी सी टेंशन, वो भी कब? एग्जाम से एक दिन पहले, रिजल्ट से एक दिन पहले खत्म। उसके अलावा साल भर वो टेंशन वर्ड भी नहीं यूज होता था। बट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। So actually 30 years back pressures ज़्यादा थे ना। 3 years का सिलेबस 5 days में 2 एग्जाम्स देना है, और आजकल कैसे एग्जाम देते हैं? 1 एग्जाम देते हैं, फिर 10 दिन छुट्टी करते हैं। मतलब अगर हमें 10 दिन छुट्टी मिली होती तो हम तो पूरा साल पढ़ते ही नहीं, 10 दिन में हो जाता वो सिलेबस सारा 1 साल का। तो how can this be called pressure? How can this be the reason to have anxiety and take anxiety pills before the exam? One exam, 10 days chutti, another exam, 1 week chutti, and that too 1 year syllabus. And these parents are saying that is the cause of our pressure and stress? No. So pressure has reduced in the last 30 years. Because with the very pure intention to reduce their stress levels, we kept reducing their pressure. But the more we are reducing the pressure, because they are not taking care, their resilience is also reducing. आप उनके एग्जाम्स के प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जीवन के प्रेशर तो रिड्यूस कर नहीं पाएंगे। आजकल कई पेरेंट्स कहते हैं हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं जहाँ एग्जाम ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात।
the more we are going to make it simpler and simpler and simpler in terms of pressure, the lesser we are strengthening them to face pressure. The lesser we are strengthening them. क्यों आज भारत के बच्चे पूरे विश्व में हर फील्ड के अंदर हैं? क्यों है? क्योंकि हाई प्रेशर जोन से वर्कआउट करके आए हुए हैं. लेकिन अब हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को छोड़ के हम कहते हैं वहां कैसे पढ़ाया जाता है, हम भी यहां उनको वैसे पढ़ाएंगे. It's time to take a pause. Don't work on reducing pressure. Work on increasing the resilience, the denominator. क्योंकि जीवन के प्रेशर घटने वाले नहीं हैं, जीवन के प्रेशर सिर्फ बढ़ रहे हैं. They are not reducing. And resilience घटाने के लिए समाज में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं इस टाइम. We know. So let's make it a priority. Are you ready to build up the EQ of the children? Yes? Extra subject है. लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता. इसके लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी लगती है. और इस प्रायोरिटी में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो बहुत सिंपल है. और वो प्रायोरिटी ये है, अपना EQ बढ़ाते जाएं. अगर आपने अपना EQ बढ़ा लिया, आपके अंग संग जो आएंगे उन सब का EQ बढ़ जाएगा. बिकॉज वाइब्रेशंस EQ बढ़ाती हैं. If I as a parent, if I as a teacher am going to say stress is normal, anger is normal, fear is normal, worry is normal, anxiety is normal, jealousy is normal, comparison is normal, competition is normal, then my vibrations are here. And because my vibrations are here, their vibrations are going to be there. बच्चों के संस्कार कौन सी एज से बनते हैं? बच्चों के संस्कार बनते हैं गर्भ के अंदर. In the womb. In the womb. By the time they come to school, foundation of life is already laid first 3 years. So that first 1000 days period जो है, that's not only just for physical health, it's also for emotional health. तो पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे, so and an expecting mother would have nice photos. भाई श्री कृष्ण जी को देखो, श्री राम जी को देखो, ऐसी फोटो देखते रहो, ऐसे बच्चे आ जाएंगे. अब आजकल की मम्मियाँ कौन से फोटोज देख रही हैं? It starts right from there. If they are going to go through that 9-month period, consuming content from the world, binge watching on, comparing and competing on social media, then it's not the child's fault at all. तो ये गलती नहीं है बच्चे की. वो बच्चे को वही न्यूट्रिशन मिला था उस 9 महीने के अंदर. If they are going to sit glued to their phone screens and then they will say मेरा बच्चा फोन देखे बिना खाना नहीं खाता, तो वो बच्चे की कोई गलती नहीं है. बच्चा वो संस्कार, उसको गर्भ संस्कार बोलते हैं. So it will have to start right from there. Now you will say our role doesn't come there. Your role comes there in terms of all your teachers who are expecting mothers. Start from there. Because even one person who creates a change ना is a ripple effect in society. और फिर it doesn't matter कि जब वो हमारे पास स्कूल में आ जाए, it doesn't mean we cannot change. We can change. We can shift completely the personality of a child, provided we start prioritizing sanskar, which means we start prioritizing emotional quotient. Because the world and the industry which you're preparing them for, even post-COVID, every business house, every industry, every hospital is saying, we want high EQ people. क्योंकि कोविड के टाइम देख लिया ना, EQ चाहिए थी सिचुएशन फेस करने के लिए. सो आने वाले समय में फ्यूचर मार्क्स सेकेंडरी हो जाएंगे, स्किल्स भी थोड़े से सेकेंडरी हो जाएंगे. कहेंगे स्किल्स भी हम आपको सिखा देंगे, आप आ जाओ, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड लेकर आओ, क्योंकि वो हम नहीं सिखाते थे, बाकी हम सारी चीज़ें आपको सिखा सकेंगे. सो दैट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड राइट फ्रॉम स्कूल. Our education system and our society system, basically our society, is a very performance-oriented society. Right or no? किसको successful कहा जाएगा? जो achieve करता है. अगर कल आपकी क्लास में एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है, एंड वो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन वो काफ़ी ईगोइस्टिक है, वो काफ़ी रूड भी हो जाता है कई बार अपनी ईगो की वजह से. वो अपनी बातें शेयर नहीं करता है, उसको जो आता है वो किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है, उसको हर साल स्टेज पे प्राइज मिलेगा. लेकिन एक और बच्चा है
जो बेयरली पास भी नहीं होता है, या कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत हम्बल है, वो बहुत केयरिंग है, शेयरिंग है, काइंड है, कंपैशनेट है, उसको स्कूल क्या बोलता है? उसको आप क्या बोलते हैं? और कल उसको उसका पेरेंट क्या बोलता है? कहता है नो गुड, फेलियर, किसी काम का नहीं है बच्चा। मतलब संस्कार तो किसी काम के ही नहीं है फिर। सो अच्छे संस्कार होने की तो कोई वैल्यू नहीं है। यू आर नॉट सक्सेसफुल इफ यू हैव गुड संस्कार्स, यू आर ओनली सक्सेसफुल इफ यू आर एन अचीवर। डजंट मैटर इफ योर संस्कार्स वर। सो दिस इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सोसाइटी। और ये भी हमने किसी और देशों से सीखा, दैट सक्सेस इज इक्वल टू अचीवर। भारत की संस्कृति में सक्सेस इज नॉट इक्वल टू अचीवर। भारत की संस्कृति में सक्सेस इज कॉल्ड सफलता। सफलता कौन से शब्द से निकला? सफल। सफल मतलब सफल, जो समाज को देता है, जिसने अपना समय सफल किया, जिसने अपना श्वास सफल किया, जिसने अपनी जीवन सफल किया, उसको सफलता कहते हैं। अ गिवर इज सक्सेसफुल, not an achiever. An achiever is an achiever. An achiever is an achiever, and it's very important. Being an achiever is very important. Being a performer is very important, but that is only one part of life. If I'm an achiever but I'm stressed, if my relationships are going through up and down, if my body has 3 diseases, we would not call it success. We would only call it an achiever. तो हमें भी बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि सक्सेस डजंट मीन ओनली योर मार्क्स, योर परफॉर्मेंस, योर फर्स्ट, योर सर्टिफिकेट, योर अवार्ड। सक्सेस मीन्स हु यू आर एज अ पर्सन। आपके संस्कार कैसे हैं, फिर आपके शरीर की सेहत कैसी है, फिर आपके रिश्ते कैसे हैं, फिर आप जो अचीव करते हैं, टुगेदर व्हेन दिस कम्स एज अ पैकेज, देन यू आर सक्सेसफुल। So the first change, which is very important in an education system, because school will be able to influence parents and parents will influence society, that performance oriented culture नहीं, पहले person oriented culture होना चाहिए। व्यक्ति important है, वो क्या perform करता है वो secondary है। क्या ये possible है? You know, हम बात करते हैं values की, principles, ethics, लेकिन बच्चे पता है क्या बोलते हैं? वैल्यूज पर कौन काम करता है? वैल्यूज की कौन बात कर रहा है? वैल्यूज की क्या वैल्यू? एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल। एंड व्हेन दे मीट ईच अदर आफ्टर कॉलेज, आफ्टर 10 years of career, they will ask each other, how much are you making? कौन से पोजिशन तक पहुंचे? That means it's only a performance oriented culture. Performance oriented culture सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो परफॉर्मेंस हमें एक रेस में लेकर आती है। रेस कहती है कि मुझे दूसरों से आगे जाना है, और दूसरों से आगे भागने के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जेलसी क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं। जीवन एक रेस नहीं है, जीवन एक ब्यूटीफुल जर्नी है, जो हमें अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे एक ब्यूटीफुल जर्नी को लीड करना है। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर कहेगा जीवन एक रेस है, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, और जब फर्स्ट आ जाओगे तब भी भागते जाओ, क्योंकि इस डर में जियो कि अगली बार कहीं सेकंड ना आ जाए। जब हम स्कूल में थे तो जो बच्चे मुश्किल से पास होते थे उनको थोड़ा स्ट्रेस होता था। आजकल वो जो बच्चे मिलते हैं जो फर्स्ट आते हैं उनको बहुत स्ट्रेस है। फर्स्ट आने वाले बच्चे को कब से स्ट्रेस होने लगा? फिर क्योंकि फर्स्ट आने वाले बच्चे को स्ट्रेस है तो फिर मतलब उसके नीचे किसी और को तो कहेंगे फर्स्ट आए हैं तो हमेशा फर्स्ट आना है। दैट अटैचमेंट टू द परफॉर्मेंस, attachment to the performance is the cause, because we said you are successful because you came first. If from tomorrow we start appreciating sanskars and values and nature of people, if we start awarding them, if we start giving a few extra marks if somebody is very caring and sharing and kind in class, if we start doing that, हर बच्चा संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर देगा। जिस चीज़ को समाज अप्रिसिएशन देगा हर एक ने वो करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर उसके बारे में कोई बात ही नहीं, और अगर अच्छे संस्कार हैं लेकिन मार्क्स कम आए तो यू आर अ फेलियर, तो फिर उसके बारे में कौन वर्क करेगा उसके ऊपर? नोबडी वर्क। बट संस्कार क्या करते हैं? संस्कार हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। If I'm first but I'm egoistic, then I'm emotionally very, very, very weak. Then I don't have the power to face situations. So let's start talking about sanskars. Let's start talking about being a giver, not just being a achiever. सेवा भाव मतलब being a giver.
एंड बीइंग अ गिवर डजंट मीन वी आर डूइंग चैरिटी. इट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक बिजनेस भी एक सेवा भाव के कॉन्शियसनेस से करें. पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ साइंस, लेकिन इससे ऊपर है पावर ऑफ माइंड. लेकिन इस सब के लिए हमें सिर्फ एक पर ही वर्क करना है. You don't have to work on the minds of your 20, 30 or 100 children. You only have to start taking care of one mind, and that mind is... Are you ready to do that? How many of you create stress? How many of you create stress? बता दो, हाथ उठा लो, कोई बात नहीं. अच्छा देखा, अभी क्यों हाथ नहीं उठा रहे? मतलब ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? इट्स लाइक आस्किंग कौन रात को सोया था? हम सारे ही सोए थे, तो इसमें क्या हाथ उठाना? सो वी आर सेइंग व्हाट अ क्वेश्चन टू आस्क. सो वी आर सेइंग स्ट्रेस इज कॉमन, नॉर्मल. अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और आप किसी को कहेंगे आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, दे विल लुक एट यू लाइक दैट. अच्छा, नॉर्मल नहीं हो या काम नहीं है? सो दिस इज डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मल व्हिच विल हैव टू बी टॉट इन किंडरगार्टन. बिकॉज हर बच्चे को बोलते रहते हैं एग्जाम है ना तो स्ट्रेस तो होगा ही, एग्जाम है ना तो स्ट्रेस तो होगा ही. 10th के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे ओहो इस साल आपका बोर्ड है, ओह अच्छा अच्छा तो स्ट्रेस तो होगा ही. सिखा सिखा के लास्ट डे उसको बोलते हैं अब स्ट्रेस मत करो तुम्हारा कल एग्जाम है. हाउ डू वी डू दिस? सो वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी व्हिच सेज प्रेशर इज नॉर्मल, एग्जाम्स आर नॉर्मल, targets are normal, stress is not normal at all. So let's create two definitions. आप लोग फटाफट बताते जाइए, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है. अपना लेफ्ट और राइट हैंड आगे कीजिए और आप खुद रखते जाइएगा. I'll just put the words, you keep it on your hands. Left is the normal one and right is the not normal one. Left is emotionally healthy, right is emotional dis-ease. Dis-ease, stress, anger, calm and patience, comparison, self-respect, jealousy, blessings to people who do well, competition, cooperation, worry, care, anger, discipline, faith, fear. बस सबके हाथ करेक्ट चल रहे हैं, बस ये जाके सिखाना है कल स्कूल में. That's all. That's all that is needed. Let's change society. Because when we say the wrong words as normal, anger normal, fear normal, and all that list as normal, we are allowing every human being to create the unhealthy sanskars repeatedly. गुस्से से बिना काम नहीं होता, थोड़ा सा तो गुस्सा करना ही पड़ता है, तो फिर लोग अच्छे से प्यार से गुस्सा करते रहते हैं. फिर गुस्सा करते रहेंगे तो ये जो बैटरी है यहाँ की वो तो घटती ही जाएगी ना. फिर जब घटती जाएगी तो डर भी लगेगा, ईर्ष्या भी होगी. सो लेट्स चेंज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज ऑल दीज इमोशंस विच वी कॉल एज नॉर्मल आर एन इमोशनल डिस-ईज. डिस-ईज मीन्स व्हेन यू आर नॉट एट ईज. आपका मन ईज में नहीं है जब हम टेंशन में होते हैं, गुस्सा. सो इट्स अ डिस-ईज. सो लेट्स चेंज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल राइट फ्रॉम किंडरगार्टन. लेट्स क्रिएट अ स्कूल वेयर नो वन गेट्स एंग्री विद एनीबडी. कर सकते हैं? देखो आज हमने सुना ना, थ्योरी में नहीं बात करनी है, करके दिखाना है. अगर एक बच्चा 10 साल एक स्कूल में पढ़ता है वेयर एंगर इज नॉट यूज्ड, एंड वी कॉल दैट स्कूल अ नो एंगर जोन. यहाँ गुस्सा अलाउड नहीं है. जैसे ही आप इस गेट में एंटर किए, यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है. आप डिसिप्लिन कर सकते हैं लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट से कर सकते हैं. यहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है. इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप फॉर 10 years in this kind of a school, he can become a leader of 1,000 people company and he will not use anger to get work done. That is certain. वो नहीं करेगा तो उस एक बच्चे से और 1000 परिवारों का कल्याण होने वाला है उसके अंदर. बिकॉज दैट चाइल्ड लर्न्स कि दिस इज, ये कौन सा मेथड है कि डांटो और काम कराओ, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं ये वाला मेथड. सो वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर इन स्कूल, नॉट अ सब्जेक्ट. इमोशनल हेल्थ इज नॉट अ सब्जेक्ट. इमोशनल हेल्थ इज अ कल्चर. इट्स अ संस्कृति, इट्स अ संस्कार. अब हम कहेंगे लेकिन उनके घरों में तो कुछ कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं. एग्जैक्टली, इसीलिए तो स्कूल में सिखाना है. अब ये जब बच्चे घर जाएंगे ना, ये अपने मम्मी पापा को भी सिखाएंगे कि कैसे गुस्से के बिना काम किया जा सकता है. आपको पता है जब आप उनको स्कूल में सिखाते हो क्रैकर्स नहीं यूज़ करने, वो घर जाके अपने मम्मी पापा को सिखाते हैं. मम्मी पापा कहते हैं नहीं नहीं शगुन है, बचाने तो है. कहेंगे नहीं,
मेरी मैम ने कहा है क्रैकर्स नहीं बजाने, मतलब नहीं बजाने. सी द पावर यू हैव, सी द पावर एवरी स्कूल हैज़. जब आपने उनको सिखा दिया प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, उन्होंने घर जाके सिखा दिया हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे. दैट्स द पावर ऑफ अ स्कूल. अ पावर ऑफ अ स्कूल इज टू चेंज संस्कार्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो द अदर वे राउंड. We are going to teach them the sanskars which they will take home and they will change their families rather than we waiting and expecting them to come from healthy families. That era is over. वो खत्म हो गया. हमने ब्लेम गेम के साथ नहीं चलना. क्या करें आजकल के परिवार ऐसे हैं, क्या करें आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं. हाँ तो हैं. इम्पोर्टेंट इज हम क्या करें उसके लिए. हम ये करें कि बच्चों को स्कूल में चेंज करके घर भेज दें. घर जाके वो अपने पेरेंट्स को पावरफुल बना देंगे. During COVID, I met a lady whose child went to a school where they would practice little meditation every morning. And she said, COVID के टाइम जब हमें टेंशन हुई ना, तो मेरा छोटा सा बेटा हमें सबको बिठा देता था और कहता था डीप ब्रीथ करो, सब ठीक हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा. And she said, we used to get better. What power this is? What power this is? But then that child learnt it from school. No? तो let's not blame. We can't sit and blame. वो ठीक होंगे, वो बदलेंगे, तो बच्चे ऐसे. We. So one, we will start working on our resilience. Second, we will create no anger zones in our school. So right from the owner of the school, right? So the owner of the school to the principal, to the teachers, to the children, and most beautiful part, फिर उस school में कोई parent आके भी गुस्सा नहीं कर सकता because that school is a no anger zone. ये सबसे बड़ा फायदा है उसका कि parents भी आके वहाँ गुस्सा नहीं कर सकते. The school is a no anger zone. क्योंकि जब वो आके इस तरह से गुस्सा करते हैं उनके बच्चों का नुकसान है उसके अंदर. उनके बच्चों का नुकसान है. So when you print your brochure, put it there. You want to get your child admitted here because this is a no anger school. So we are not just no smoking, we are not just no plastic, we're also no anger because anger removes fear, anger removes hurt, anger removes humiliation, and it builds up emotional health. So that is one step to build resilience. Second, content consumption. We don't need to talk about content consumption, we all know it. They are not so much listening to their parents. So जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर स्कूल में बात करेंगे, you will create a big influence on children. I'm meeting a lot of children nowadays because they are not on social media handles, they are not being accepted by their peer pressures in school. मतलब अब सही होना मुश्किल हो गया. अब सही होना मुश्किल हो गया. So if you're not going to parties, if you're not on a social media handle, if you're not experimenting with substances, if you are not experimenting with relationships in school, you're boring, you're old-fashioned. तो वो लोग स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं. तो इसलिए उसकी इंडोर्समेंट स्कूल में करनी पड़ेगी. We have to talk about it. Social media creates a sanskar of comparison, jealousy, and most important, social media creates a sanskar of public approval. Please like me. And these children will start becoming anything which will get more likes, and that's the most risky thing to happen. तो हमें हर रोज उसके बारे में बात करनी चाहिए. हर रोज 5 मिनट 2 मिनट हमें उसके बारे में बात ही करनी पड़ेगी कि content is equal to emotional diet. What we watch, what we read, what we listen is who we become. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही हम बनते हैं. लेकिन उनको वो सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हम भी कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, तभी हमारी बात का प्रभाव उन पर पड़ेगा, नहीं तो बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसीलिए उनके पेरेंट्स का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स सारा दिन फ़ोन के साथ हैं और उनको बोल रहे हैं डोंट लुक एट द फोन. इट डजंट वर्क. इट डजंट वर्क. सो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट कंजम्पशन. व्रत लीजिए कि कोई ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे जो आप बनना नहीं चाहते हैं, जो आप बनना नहीं चाहते हैं. If we consume content which has ego, lust, greed, jealousy, violence, fear, there is no way we will not become that. हो ही नहीं सकता कि हम वो नहीं बनेंगे. तो जैसे हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमें अपने कंटेंट कंजम्पशन का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज कंटेंट इज़ द फंडामेंटल रीज़न फॉर मेजॉरिटी इश्यूज गोइंग ऑन राइट नाउ इन सोसाइटी. वो किसी का बिजनेस है, वो कुछ ना कुछ और नया सोचते रहेंगे जिससे हम ज़्यादा उसके अंदर फंसते जाएं. उनका बिजनेस हमारा भाग्य बदल रहा है. सो कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार एंड संस्कार इज इक्वल टू कर्म
and karam is equal to bhagya. So content is equal to destiny. So it's not a time pass. Content consumption is not a time pass. चलो बोर हो रहे हैं टीवी देख लें, चलो बोर हो रहे हैं फोन स्क्रॉल कर रहे हैं. Content consumption is not time pass. Content consumption is destiny. So do it for yourself. See the change it creates in you, and then you say one word and the other person will get influenced to change. Because we will have to live that and do that. And last चीज साथ साथ अपने जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट डेली बेसिस पर स्टार्ट कर लें, which means consume what you want to become. That is why spirituality is very important, because spirituality is content of faith, compassion, purity, peace, acceptance, forgiveness, letting go, cooperation, self-respect. That's also content. जो इसको रोज आधा घंटा कंज्यूम कर ले, वो बिना बने रह नहीं सकता. It's not possible. So we just have to choose कि हमें क्या कंटेंट कंज्यूम करना है. तो कम से कम 15 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले, ताकि आपको गहरी नींद आए. There is another epidemic in the world, lack of sleep. हम सोते हैं लेकिन मन नहीं सो रहा होता है, बॉडी सोती है. इसीलिए सुबह उठ के उठने का मन नहीं करता. किस किस को सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन करता है? This is we are all cumulative in everything. It's because we did not experience deep sleep. Deep sleep नहीं experience की, और जब deep sleep नहीं experience करते तो emotional, mental, physical health issues सारे बढ़ जाते हैं. तो let's start doing this ourselves. खुद करें, खुद experiment करें, खुद उसको experience करें, खुद उसको अपना lifestyle बनाएं. फिर जब आप उसको share करेंगे, it will create a magical change. एंड सबसे पहला बेनिफिट किसका हो जाएगा? सबसे पहला बेनिफिट किसका हो जाएगा? वो हमारा हो जाए. तो हम अपने लिए कर रहे हैं. मेडिटेशन कुछ साल पहले एक चॉइस होती थी. When I started learning, people used to ask, "Are you interested in meditation?" So for 4 years I said, "I'm not interested only." But I was not interested. क्योंकि उस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं था, तो I didn't find the need for it. Today, meditation is not about interest. Meditation is not about choice. Meditation should be mandatory. That's the only way. Till a child learns to sit still. खुद भी चेक करना, 15 मिनट बैठिए बिना कुछ कीजिए. Just sit still in one position for 15 minutes. भले आपको मेडिटेशन नहीं आता हो, it doesn't matter. लेकिन आप 15 मिनट सिर्फ बैठिए without doing anything. देखना कितना मुश्किल होगा. बार बार लगेगा 1 मिनट फ़ोन देख लूँ, 1 मिनट ये कर लूँ, 1 मिनट. सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड. तो अगर हम उनको रोज़ सुबह स्कूल में ये कराते हैं 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, जाने से पहले 5 मिनट, 2 मिनट, they will start practicing it. Then they will do it at home before studying, before an exam. Simple things बैटरी चार्ज करती है. इमोशनल हेल्थ को बनाना कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन घटाने के लिए दुनिया में आज बहुत सारी चीज़ें हैं. हर क्लास, हर सब्जेक्ट की हर क्लास 1 मिनट साइलेंस से स्टार्ट होनी चाहिए. बट जनरली क्लास थोड़ी सी आवाज़ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ शोर होता है ना. लेकिन अगर वहाँ शोर है ना, तो शोर को शांत करने के लिए पहले अपने मन को शांत कर लेना चाहिए. आपकी पीसफुल वाइब्रेशंस उनके शोर को ख़त्म करें. आपकी ज़ोर से आवाज़ उनके शोर को ना दबाए. दैट विल नॉट वर्क. दैट विल बी अ hassled mind teaching another hassled mind. It should be a peaceful, powerful mind empowering another mind with their vibrations. तो अगर हमारा मन शांत होता गया, शांत means think less, think right, फिर we have the power to empower others. But for that, we need to make at least 10-15 minutes of spiritual study, which means positive, pure, healthy content, and meditation, which is another 10-15 minutes, which means half an hour for self-care. खुद को एनर्जाइज करने के लिए आधा घंटा रोज़ रखिए, और फिर आप देखिए कि आप मिरेकल्स क्रिएट करेंगे. हमें ये नहीं पता कि ऐसे कल्चर से बाहर निकल के ये बच्चे कोई अचीवर बनेंगे या नहीं बनेंगे. तो आई बिलीव एनीबडी हु वर्क्स ऑन देमसेल्व्स विल अचीव मोर देन देयर कैपेसिटी. बट एवरीवन्स कैपेसिटी एंड IQ इज डिफरेंट, राइट? एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट IQ.
हम कुछ हद तक किसी की बढ़ा सकते हैं, लेकिन EQ हम हर एक की 10 on 10 लेकर जा सकते हैं, because EQ is not a skill, it's a strength, and that can be created. Every child, every individual can go up to the highest EQ. Develop that, and when you develop that, they will raise their IQ in reference to where it is. They will be able to take it higher than that. If they are getting 80, they will get 85. But if they are stressed, if they are getting 80, they will get 75. So if we work on the EQ, the IQ will be taken care of. They may become achievers, may not become achievers whose names are put up on some nameplates, but they will always be very powerful. They will be stable in every situation of their life, and most important, without doing anything, they will be contributing to creating a peaceful world just by living peacefully inside. Because if I'm peaceful, I'm radiating vibrations of peace in the world, and that creates the world. तो संस्कार से संसार बनता है. आज दुनिया बड़ी मेहनत कर रही है संसार को ठीक करने के, लेकिन वो मेहनत रिजल्ट नहीं ला रही है, क्योंकि वो संसार को ठीक कर रहे हैं संसार को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं संसार अच्छा हो जाएगा तो हम हैप्पी होंगे. इट्स द अदर वे राउंड. द लॉ इज संस्कार से संसार, नॉट संसार से संस्कार. तो संस्कार पे वर्क करिए, संसार अपने आप ही बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा. जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा. लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोर. संकल्प से सृष्टि बनती है, तो संकल्पों पे वर्क कर लें, सृष्टि अपने आप बन जाएगी. ये बीज है. दिस इज द सीड ऑफ लाइफ. फ्रॉम हियर गोज द ट्री. वी आर वर्किंग ऑन द ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. Nurture the seed, teach them to nurture the seed. Fruits and flowers will be healthy on the tree, because they will be calm and stable and empowered. And that's how we will be able to create high EQ, and we will be able to finish mental health issues from the country. We will go back to living very happy relationships and families, and then we can become the Vishwa Guru, because that is what the whole world needs. So we will be able to share that with our practical life examples. Thank you so much. Shukriya. Om Shanti. Sure. कहते हैं ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं. आज मैंने दीदी से संस्कार सीखा. मैं जूतों के साथ मैंने स्टेज लिया और इन्होंने उतारा. वही सिंप्लिसिटी जो मैं कह रहा था, ये तो अब पब्लिक है, आई कैन ईजिली से दैट. सो आई लर्नड एंड आई टुक आउट. सो बहुत बहुत धन्यवाद. आज आप मेरी फिर एक बार गुरु बनी. There are lots of questions, many who have already been have been given before. And I would like to, she has addressed many of the questions, but there are just 2-3 questions that, or as many as she will allow, but she had said was 12:30 was her time, but we are grateful that she is spending few more minutes beyond 12:30. We really respect that. One question जो मेरा favorite है, मैंने अपनी power use किया, I hope मैंने गलत नहीं किया, but this is the प्रारब्ध पुरुषार्थ question, जो मैं यहाँ ज़्यादा देखता हूँ. विदेश में पुरुषार्थ की बातें ज़्यादा होती हैं, यहाँ प्रारब्ध की ज़्यादा होती हैं. The question is by Dr. Raminder Pal Kaur, the Swapin School. People say at times it's karma of previous birth. Is it true or just a myth? What is karma and what is destiny? Bring your hand out. एक बॉल पकड़ी अपने हाथ में, कर लो, पकड़ो और अपनी सामने वाली दीवार पे फेंक दो. While you're throwing that ball out, you have complete control on it. How you want to throw it, which angle, which direction, and which speed. That is your karma. That ball will hit that wall and come back to you. That is a return of your karma, which means a simple consequence of your karma. And that is called destiny. So what I create is karma. What is happening to me is destiny. But what is happening to me is only because I created that karma. So it's energy. This is law of energy, that the energy you throw out, the energy is coming back to you. But who is creating the karma? It's I, the being, energy.
हम उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, शक्ति कहते हैं. एंड दैट इज इटर्नल. वो कभी मरती नहीं है. सो डेथ मीन्स द बॉडी इज नो मोर. But this energy doesn't get destroyed, it's energy. So the energy just leaves and enters the womb of the mother. And that's why, just check your children. Are your children exactly like you are? Are your children exactly like you are? No. Did they come as a blank slate where you could write anything? No. They came with sanskars already and they came with their destiny. अगर आपके जुड़वा हैं, twins, they could be looking identical, but they will not be identical. Because they are souls on a journey, they have left one costume, taken another one. So my last minute, you can check right now, if you leave the body right now. आपको पता है ना हम कभी भी छोड़ सकते हैं? भाई साहब ने कहा कोविड ने सिखा दिया, इसका मतलब हमने इसके पहले नहीं सोचा था इसके बारे में इतना. Yes, uncertainty. हम कभी भी ये शरीर छोड़ सकते हैं. And that's why the most beautiful way to live is always be ready to leave. If you're always ready to leave, you will live very beautifully because that you're not keeping any clutter here, any pending karmic accounts, any pending len-den. Karmo ka len-den. Paison ka nahi, karmo ka len-den. So this minute, if I leave the body, this is my closing balance sheet, 31st March. And then I, the soul, enter the womb of the mother. बच्चा पैदा होता है. मेजॉरिटी परिवारों में 2-3 दिन के अंदर एक जन्म पत्री बनती है. That is your 1st April opening balance sheet. So that opening balance sheet is created based on the soul's karma and sanskars. So वो destiny सामने आ जाती है कि 10 साल में ये होगा, 20 साल में ये होगा, ये होगा. तो that is telling us कि 10 साल बाद कौन सा बॉल वापस आएगा, 20 years बाद कौन सा आएगा, 40 years बाद कौन सा आएगा. बट वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा वो फेंक कर आया था. बट वी आर नॉट अ विक्टिम टू वापस क्या आ रहा है. बिकॉज वेन जो वो वापस आ रहा है, I have the power to create the karma now. So we don't live life dependent on what's written in the destiny. We don't live life dependent on what is happening to me. Because जैसे ही एक बॉल सामने से आती है, how I think, speak and behave is my new ball. It's my new karma. So don't focus on what's written in your destiny. In fact, ideally, don't even ask anybody what's written in your destiny. It's not needed to know. Create your own destiny every single moment by creating your right karmas in the present. तो अगर कोई अपने closing balance sheet में loss भी लेकर आया हो, तो भी वो profit create कर सकता है इस financial year में. और अगर कोई profit भी लेकर आया हो, लेकिन इस साल कुछ ठीक नहीं किया, तो opposite भी हो सकता है. So the power is in the present. So जो हमारे साथ हो रहा है, वो पूर्व कर्मों का फल है. लेकिन भाग्य उस आधार से बनता है कि हम प्रेजेंट कर्मा क्या करते हैं. तो सामने से कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज वी हैव एम्पावर्ड आवरसेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन टू थ्रो द राइट बॉल नाउ, द राइट कर्मा नाउ. आपके द्वारा गीता का 5वां चैप्टर, 14वां और 15वां अध्याय याद आता है, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऑल द थिंग्स, all the fruits, everything, action, it is only the swabhav, that is you who are responsible, even though we have heard that God gives. और अगर थोड़ा भी डाउट है तो 5वें चैप्टर के 15वें में वो क्लियर कर देते हैं, only fools thank me when something good happens in their life, or curse me when something bad happens in their life, not realizing that it is their swabhav that is a cause of all this. थैंक यू फॉर नॉडिंग. एंड मैंने भी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली. जब मैं बताऊं, जब ब्रह्म कुमारी के पहली बार मैं कॉलेज में था 80s में, वहाँ पे जब मैं गया था, तो आई थिंक ऑल दोज यू आर रिफ्रेशिंग माई मेमोरी एंड आई एम श्योर एवरीवन वी आर रियली हैप्पी. द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी कीप ऑन रिस्पेक्टिंग अदर्स when they don't respect our views or choices? और ये घर में भी होता है, माँ बाप, भाई बहन से. It's as simple as how to be nice to someone who's not nice to me. How to be nice to someone who's not nice to me. Okay, is it easy to be nice to those who are nice to us? How many of us are able to do that, being nice to those who are nice to us?
अच्छे से हाथ उठा लो, एक बार देखना। मतलब जो हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारे को प्यार सम्मान देते हैं, वी कैन बी नाइस टू देम। इसका मतलब बीइंग नाइस का संस्कार मेरे पास है। प्यार से बात करने का, सम्मान से बात करने का संस्कार मेरे पास है। तो अगर मेरे पास है तो मुझे सिर्फ चूज करना है कि वो संस्कार कब कब यूज करना है। अब हम चूज कर रहे हैं कि जब वहां से कोई अच्छा होगा तभी हम अच्छे होंगे। अगर हमने ये चूज कर लिया कि वहां से कोई कैसा भी हो, हम अपने संस्कारों से जीते हैं, सो इट डजंट मैटर what is happening from the other side. Live by your sanskars. Don't be a photocopy machine just copying what the other people are doing. कि वो अच्छे तो हम अच्छे, वो ज़्यादा अच्छे तो हम ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इतने प्यार से बात की तो मैंने भी बहुत प्यार से बात की, but that's a photocopy machine. We're not photocopy machines. We are using our sanskar. And most important is, why should I be nice to someone who's not nice to me? Being nice is very easy. लेकिन हमारा अहंकार कहता है मैं क्यों अच्छे से बात करूं जब उन्होंने नहीं किया। मैं इसलिए करूं ताकि उससे मेरी EQ बढ़ती है, मैं इसलिए करूं ताकि उससे मेरा संस्कार और स्ट्रांग होता है, मैं इसलिए करूं ताकि उससे मेरे कर्मा की बॉल सही जाती है, और मैं इसलिए करूं क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, उसके अलावा मुझे और करना कुछ आता नहीं है, मैं इसलिए करूं। इट्स वेरी सिंपल। द टफर थिंग इज टू एक्चुअली चेंज योर सेल्फ व्हेन समबडी इज नॉट राइट। द ईजियर थिंग इज बी योर सेल्फ व्हेन समबडी इज नॉट राइट। दैट इज ईजी। तो हम ईजी काम छोड़ के मुश्किल वाला करते हैं, जो हम नहीं हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। वी डोंट नीड टू। सो इट्स ओनली अबाउट आवर ईगो विच सेज व्हाई शुड आई। टेल योर ईगो बिकॉज आई वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। And if I want to be happy in life, I need to be right always, irrespective of how other people are. Because then this soul power battery will keep charging. I will always be happy and healthy. And that is my moral responsibility towards myself, my body, my children, my students, and to the world. किसी और की बीमारी की वजह से, it's like COVID actually, you know, come to think of it, it's like COVID. सामने वाले को COVID है, आप क्या करेंगे? अभी अभी कोई एंटर करेगा, अच्छा सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे कोविड है, आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली अपना मास्क उतारेंगे, आप मेरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, बस यही करना है, यही करना है। आप थोड़ी बोलेंगे अच्छा आपको कोविड है तो हमें भी कोविड है, ऐसे तो हम नहीं करेंगे। सो व्हेन समवन डजंट बिहेव राइट, दे आर इमोशनली अनवेल, दे आर इमोशनली अनवेल, दे नीड केयर गिविंग, दे नीड एम्पावरमेंट। Protect yourself from their emotional infection. And the only way to protect yourself is use your right sanskars. Go higher in your vibration. Don't come down to their vibration. लोग नीचे उतरते रहेंगे तो क्या हम भी उनके साथ नीचे उतरते रहेंगे? कोई और ज़्यादा नीचे उतरेगा तो हम भी उसके लेवल पे जाके और ज़्यादा नीचे उतरेंगे। जो लोग जितना नीचे उतरें, हमें उतना और ऊपर चले जाना चाहिए, ताकि ऊपर जाकर उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे प्रभाव से जो नीचे थे वो भी ऊपर की तरफ खींच के चले आएंगे। बिकॉज एनर्जी डजंट फ्लो फ्रॉम डाउन टू अप, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। सो जस्ट गो अप एंड योर एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म देम ऑल्सो। बहुत खूब दीदी। ये मिस उत्तरा सिंह डायरेक्टर श्रीराम मिलेनियम स्कूल की पूछ रही हैं, एंड मे बी इट्स रिलेटेड टू दिस, हाउ डज वन अचीव द बैलेंस बिटवीन बीइंग काइंड and being firm? Don't be firm, just be kind. But when you are kind with power, you are automatically firm. But when we try to become firm, we become something else. So don't try and become firm. Don't try and become firm, because firm, ego के अंदर जब firm होता है ना, तो वो firm थोड़ा सा अलग सा रूप ले लेता है. Just be kind, be compassionate, be empathetic. गलती होगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी बुरा लगेगा, लेकिन जैसे ही वो बुरा लगा या गुस्सा आया तो ये मत बोलना उनकी वजह से। टू बी इमोशनली हेल्दी, वी नीड टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच सेज उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से परेशान, उनकी वजह से दुखी, उसकी वजह से खुश। प्लीज टीच योर चिल्ड्रन इमोशनल इंडिपेंडेंस। वट एवर वी आर क्रिएटिंग हियर इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर चॉइस। So just be kind, and kind doesn't mean weak. Kind doesn't mean weak. Kind means power. But it means neither exploit others and neither be so weak that somebody can exploit you.
अगर कोई हमें एक्सप्लॉइट करके चला गया, देन दैट वाज नॉट काइंडनेस, दैट वाज वीकनेस, दैट वाज वीकनेस. इसलिए जब डेली अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे ना, तो काइंड के साथ साथ पावरफुल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. सो नोबडी कैन एक्सप्लॉइट आवर काइंडनेस, दैट्स फॉर सर्टेन. मैम, मैं झुक के पूछे जा रहा हूँ. आई नो यू आर काइंड, बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू. मतलब मत देखिए. वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू. आई डोंट वांट टू मिसयूज योर काइंडनेस, बट वी रियली अप्रिशिएट योर ओवर स्पेंडिंग द टाइम व्हाट यू प्रॉमिस्ड अस. मैम, ये अलका सिंह ऑफ ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल सेक्टर 4 गुड़गांव पूछ रही हैं, हाउ चेंज इज इनएविटेबल, बट व्हाट मेजर्स कैन वन अडॉप्ट to be resilient to change, because change is inevitable, but it's tough. Yeah, that's what we discussed today. The world outside is going to keep changing, which means the numerator will keep increasing. All that we have to do is we have to enhance the denominator. That is the resilience, which means my coping skill to whatever change comes. And that's a simple thing. Keep changing yourself. And changing yourself means, okay, let's do a little exercise. Close your eyes and rank your EQ. अपना EQ rank कीजिए on a scale of 1 to, किसी को बताना नहीं है, so honestly कीजिएगा. On a scale of 1 to 10, 10 is high EQ, 1 is low, and the criteria for measuring it is, how do I respond to situations which are not my way? Do I react very easily, irritable, or do I remain very stable and express my opinion? Do I get hurt easily? Give yourself ranking between 1 to 10. कितना hurt होता है? कब तक hurt पकड़ के रखते हैं? कितना जल्दी बातों को भूल सकते हैं, लोगों को क्षमा कर सकते हैं? रैंक 1 to 10. दूसरों की सफलता देखकर कितना अच्छा लगता है? सिर्फ ऊपर से मुबारक नहीं, दिल से दुआएं देते हैं. या कभी ये थॉट आता है, उनका क्यों, मुझे क्यों नहीं, मैंने ज़्यादा मेहनत की थी. ये तो सिर्फ मिलने चले जाते हैं हर थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल मैम को. रैंक 1 to 10. छोटी छोटी बातों में चिंता होती है, कितनी चिंता होती है, और मन कैसा सोचता है? Now, nutshell, take all the subjects, give yourself marks, and create an equivalent score of 1 to 10. And now change means wherever I am, I can start moving up. I can start moving up, because not many of us would be a 10 on 10. 10 on 10 means स्वप्न में भी गुस्सा नहीं, स्वप्न में भी चिंता नहीं, मतलब उसका संस्कार ही नहीं है. स्वप्न में भी ईर्ष्या नहीं, स्वप्न में भी डर नहीं. That is a 10 on 10. So whether I am 6, 7, 8, whatever, I always have the capacity to move one up. So don't worry about what change is happening outside, because that's not in our control, that's happening. But I keep changing myself to keep raising my vibrations. The higher you go, the more your vibration is impacting everyone around you, including the children. So the higher we go, the higher we pull them up. And that's why it's very easy to create emotional health of children. All that we have to do is to create it in ourselves. खुद के अंदर करते जाएं, उनकी वाइब्रेशन को ऊपर खींचते जाएं, क्योंकि वो आपके संग में रहते हैं. संग में रहते हैं ना, तो वो ट्यूनिंग फोक की तरह फ्रीक्वेंसी है. बस वो वाला ट्यूनिंग फोक बन जाओ कि जो आपके सामने आए वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाएगा. बट देन टेक केयर दैट वी आर ऑन अ हेल्दी फ्रीक्वेंसी. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. ओम शांति. तो मैम, बिल्कुल आपकी एकदम ना तोड़ते हुए, आपको आपने कहा कि विश्व गुरु इंडिया में बनना है, तो यहाँ जो अध्यापक हैं वो तो सीख ही रहे हैं, बट ऑल्सो द पॉलिसी मेकर्स लाइक अनुराग त्रिपाठी, दे ऑल्सो नीड गाइडेंस. आई थिंक ही इज आस्किंग वन फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम हिम, थ्रू योर परमिशन, इफ वी कैन आस्क. अनुराग जी, जस्ट योर क्वेश्चन प्लीज, फ्लोर इज योर्स.
शिवानी दीदी, मुझे मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन फिर भी पालन नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, एकदम व्यक्तिगत निहायत। सत्य पता है लेकिन नहीं चल पाता हूँ। ये मालूम है सरल रहना है, लेकिन जटिल रहता हूँ। ये भी पता है कि विनम्र होना चाहिए, लेकिन फिर भी अहंकार से रहता हूँ। अच्छी चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाता हूँ। आप लोग अपने को कैसे इस स्तर तक लेके गए हैं? कुछ लोग तो हैं जो पहुंच जाते हैं, ज्यादातर सुनते हैं। मुझे मालूम है प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। तो आप लोग कैसे यहां तक पहुंच जाते हैं, इस स्थिति तक? क्या करना चाहिए? आसान तरीका कुछ है? बहुत आसान, कथनी करनी में, बहुत आसान। नोइंग डूइंग गैप्स, सब कुछ पता है, होता नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे भाई साहब ने इतनी स्वीटली कहा ना, ये पता है ये नहीं। सो इट्स लाइक लुक एट इट ऑन अ फिजिकल लेवल। सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं लेकिन सांस फूलती है। मौसम बदलता है, हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा दूसरे शहर का पानी पी लिया, खाना खा लिया, पेट खराब होने लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? आसान तरीका बताइए, बताइए। वेरी गुड, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। अब इम्यूनिटी बढ़ाने का आसान तरीका बताइए। द मोस्ट सर्च वर्ड इन द लास्ट 2 years, इम्यूनिटी। It's only 2 things, no? Good diet, exercise and good sleep. Same चीज़ आत्मा के लिए करनी है। Good diet, exercise and good sleep. And diet मतलब content, exercise मतलब meditation, और ये दोनों कर लिया, नींद अपने आप गहरी आती है। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठती जाएगी, आपका अहंकार अपने आप क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। वो घटाना नहीं पड़ता, हम अहंकार को घटा नहीं सकते, हम ह्यूमिलिटी को बढ़ा नहीं सकते, हम सिर्फ सोल पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। नम्रता बढ़ती जाएगी, अहंकार घटता जाएगा। सत्य पता होगा, और हम सबके पास सत्य पर चलने की शक्ति है। लेकिन जब हम सत्य पर चलते हैं, कभी कभी हम लोगों का अप्रूवल खो देते हैं। वी कुड बी ऑन द माइनॉरिटी साइड, मेजॉरिटी कुड बी देयर, एंड कभी कभी सत्य पर चलने के लिए कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन अगर अपना कर्म क्या करना है वो याद रहेगा, और ये याद रहेगा कि जो बॉल हम फेंकेंगे वो बॉल वापस आएगी, तो सारी दुनिया एक तरफ, अकेले खड़े होने की ताकत आ जाएगी। सारी दुनिया एक तरफ। संस्कार और कर्म ये हमारा कंपस है। संस्कार और कर्म ये हमारा कंपस है। इसको हम पकड़ के सारा दिन चलते हैं। गलती होती है, 1 सेकंड में रुककर उसको ठीक करते हैं। लोगों को नहीं बोलते कि आपको ठीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है कि संस्कार और कर्म तो हमारा अपना है। तो संस्कार एंड कर्म इज स्पिरिचुअलिटी। जब रोज़ उसको स्टडी करते हैं तो वो कंपस सारा दिन ऐसे साथ में चलता है। परफॉर्मेंस हो या ना हो पता नहीं, लेकिन संस्कार और कर्म का कंपस पकड़ के रखते हैं तो संस्कार और कर्म पर अटेंशन रहता है, परफॉर्मेंस होती रहती है हर एक के। एंड उसके लिए आश्रम में रहना पड़ता नहीं है, उसके लिए सफ़ेद कपड़े पहनने नहीं पड़ते हैं। दिस इज़ जस्ट अ ड्रेस, दिस इज़ जस्ट अ यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल वेयर आई गो, दैट्स ऑल, जस्ट लाइक द यूनिफॉर्म विच ऑल योर चिल्ड्रन वेयर। What we wear and where we stay is immaterial. I could be staying in an ashram and could be very high in ego. And you could be staying at home, playing your role, and you could be egoless. It has nothing to do with where we stay. It has everything to do with who we are here. And who we are here is nothing to do with the role we play, where we stay, and what we wear. तो जब आप कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आएंगे, आप देखेंगे घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, स्कूल संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, पेशेंट्स को संभालते हैं, मतलब हर प्रोफेशन से आते हैं, लेकिन हर रोज़ 1 घंटा सेंटर पर आते हैं। बाकी 23 घंटे वो बाहर अपनी सेवा करते हैं। 1 hour for spiritual study and meditation, 23 hours for the world. But that 1 hour is like a gym. So वो 1 hour करने से जहाँ भी हैं वाइब्रेशन में, वहाँ से ऊपर उठना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। सो इट्स लाइक स्पिरिचुअल फिटनेस जिम।
Everybody is welcome. Wherever you stay within your 3 kilometers, there would be a center. Just walk in. And sisters are always available to learn and teach you that meditation. There is no cost over there. It's purely seva. All that is needed is हम 1 घंटा निकाल कर जाएं और वो हमें सिखाने के लिए सभी तैयार हैं. हर सेंटर. तो आप जहाँ से आए हैं, विद इन वेरेवर यू स्टे, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर सेंटर ज़रूर होगा. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. कमाल है ये बहना, आपने कितना मार्गदर्शन दिया. थैंक यू सो मच. I'm not a member of Haryana Progressive Schools Conference, but I'm sure if I was a member or all the other members, they would be feeling so happy. You may not have known that there is an AGM of theirs in the evening at 5 p.m. I personally feel that you have guided them also for that, because they will take important decisions in their AGM at the end of the day. And as a director of Times of India, I also feel on behalf of Times of India, you have given us so many, there's so many Times of India people here, and each one of them is feeling so nice, not to forget Anurag Tripathi ji and other people who are also here from outside. I think in the end, as you take leave, I would like that a small token of memento be given by Dipin Rao ji and Anurag Tripathi ji, if both could come. On the देखिए आपके उससे दिपिन जी के पहले ही वो उतर गए वो leadership by actions, not words. Yes, I think she deserves a round of applause.